morning everyone. Today we are going to start wave optics. See, for studying wave optics, we need to understand what propelled scientists to introduce this wave theory and who were the researchers behind this wave optics or any other theories related to the development of wave optics. So the story starts with 1704 when Newton first proposed the Newton's corpuscular theory. So what were the corpuscles? Corpuscles were the tiny particles assumed by the Newton, so that Newton said the universe is made up of the light is made up of tiny particles called corpuscles. So corpuscles were nothing but the tiny particles assumed by the Newton, not real particles. And he propounded that the whole light, wherever the light is there is actually the corpuscles which are emitting the light or carrying the light. Alright, but from where this corpuscles name came? It was René Descartes, the French scientist, or you can say he was not actually the scientist, he was the philosopher. He proposed that whole universe is made up of teeny particles. Whole universe is made up of teeny particle, not light. So according to Descartes, this corpuscles word was firstly given by Descartes. Descartes was a philosopher, so he does not contributed to the development of science. Alright, but his quotation was still popular, that is, I think therefore I am. So he was a genius in his field. Now we are going to study what were corpuscular theory. So Newton proposed this theory and assumed and given some basic points which were the basics of the Newton's theory. So in this video we are going to study Newton's corpuscular theory of light. How does this theory explain the phenomena of reflection and refraction, and the limitations of Newton's corpuscular theory of light. Alright, so let's start with firstly thinking about why this field and what is the Newton's corpuscular theory. So firstly, let's start by assuming that what were the assumptions of Newton corpuscular theory. See, Newton firstly considered his corpuscles as the teeny, very teeny ball-like structure which are you can say इलास्टिक. ऑलराइट, तो पहली थ्योरी, पहला स्टेटमेंट न्यूटन का क्या था उसको देखते हैं. ठीक है, देखिए सबसे पहला स्टेटमेंट उन्होंने ये दिया कि कॉर्पस्कल्स आर एक्चुअली, पूरा स्टेटमेंट देख लेते हैं. A ray of light consists of a stream teeny very light particles and perfectly elastic particles called corpuscles. तो यानी first thing the Newton made statement is that corpuscles are actually perfectly elastic particles and these are very tiny particles. Second statement was what? Just because these are elastic, according to first statement, just because these were elastic, they can jump or they can reflect at 90 or at following the law of reflection and refraction. Second statement was that the corpuscles are emitted by any luminous source of light such as sun, candle, glowing, electric bulb, etc. These are the source of corpuscles. Alright. Third statement was that the corpuscles shoot out from the luminous body in a straight line and in all possible directions. One very important statement Newton also made, that corpuscles are actually the particles which changes their velocity, or you can say deaccelerate or accelerate when moving through different medium, so that he can explain the refraction of light. You know all the phenomena related to reflection and refraction. तो रिफ्लेक्शन को तो उन्होंने अपने इलास्टिसिटी से एक्सप्लेन कर दिया कि कोई भी बॉल अगर मान लीजिए किसी एंगल पे इंसिडेंट कराई जाती है, मान लीजिए हिट की जाती है, तो वो उसी एंगल से इक्वल डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाती है दूसरे डायरेक्शन में. मतलब
सेम एंगल से, जितना एंगल इंसिडेंस होता है उतना ही एंगल रिफ्लेक्शन होता है। तो रिफ्लेक्शन को तो उन्होंने उस तरह से इलास्टिसिटी से डिफाइन कर दिया। कहाँ से निकल रही है ये बता दिया कि कोई भी ल्यूमिनस सोर्स से ये पार्टिकल्स निकलते हैं और अपने साथ लाइट कैरी करते हैं। थर्ड, उन्होंने ये कहा कि ये जो रिफ्रैक्शन है ये फिनोमेना हम कॉर्पस्कल्स के थ्रू दे सकते हैं, क्योंकि कॉर्पस्कल्स आर द पार्टिकल्स विच मूव इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस एंड दे बेंड। ऑलराइट, तो देखिए अब चौथा वाला क्या है उसको देख लेते हैं। द वेलोसिटी ऑफ लाइट कॉर्पस्कल्स चेंजेस with medium. All right, when the medium changes, the velocity of corpuscles also changes. What was the fifth statement? See, corpuscles are different in sizes, and this was very important statement because Newton actually explained that this size of the corpuscles is the prime reason for the different colors of the different object. मतलब उन्होंने ये कहा कि ये जो साइज है कॉर्पस्कल्स के ये डिसाइड करते हैं कलर। बाद के जो फिनोमेनाज आए या बाद के जो भी थ्योरीज आई उसमें ये तो हमें पता है कि वेवलेंथ इज द प्राइम फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफरेंट कलर्स, बट उस टाइम कॉर्पस्कल्स के मामले में न्यूटन ने ये बात कही थी। चलिए आगे देखते हैं। लास्ट, ठीक है, उन्होंने 6th ये कहा था कि ये जो विजन है यानी जो हम देख पाते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, ये इस वजह से है क्योंकि रियल में ये पार्टिकल्स यानी कॉर्पस्कल्स जो हैं ये हमारी रेटिना पे हिट करते हैं जाके, और इस कारण से हमें सेंसेशन ऑफ विजन मिलता है। ठीक है, तो ऐसा भी कुछ नहीं था, लेकिन उनका जो स्टेटमेंट था वो यही था। और 7th पार्ट देख लेते हैं, 7th पॉइंट जो सबसे लास्ट है और इम्पॉर्टेंट है, उसको समझते हैं। द कलर परसेप्शन इज ड्यू टू डिफरेंट साइजेस। तो ये सारे ही जो 7 अलग अलग स्टेटमेंट्स थे, दिस वाज रिलेटेड टू न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी। ऑलराइट, तो उन्होंने डिफरेंट फिनोमेनास को एक्सप्लेन करने के लिए डिफरेंट तरीके अपनाए। जैसे देख लीजिए, रिफ्लेक्शन के लिए उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि कॉर्पस्कल्स आर टीनी बॉल्स, और वो उसी एंगल पे, जिस एंगल पे इंसिडेंट कराई जाती है उसी एंगल पे अपोजिट डायरेक्शन में या दूसरे डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ये फिनोमेना तो चलिए उनका पार्टिकल बिहेवियर के कारण हम कह सकते थे, लेकिन उन्होंने जब रिफ्रैक्शन की बात करी है ना, उन्होंने कहा कि पार्टिकल एक्सेलरेट एज दे गो फ्रॉम एयर टू मीडियम ऑफ ग्रेटर ऑप्टिकल डेंसिटी। ध्यान दीजिए, ग्रेटर ऑप्टिकल डेंसिटी पे एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा कहाँ होता है, यानी वेलोसिटी बढ़ जाना कहाँ होता है? ठीक है, याद करिए, बताइए कहाँ होता है? बहुत अच्छा मीडियम, बिकॉज लाइट के साथ क्या होता है, हमें पता है कि लाइट, चूंकि हमने 10th में नॉलेज ली है इतनी ऑप्टिक्स की, लाइट बेंड करती है क्योंकि पार्टिकल्स स्लोअर हो जाते हैं। लेकिन न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थ्योरी के अकॉर्डिंग व्हेन इट मूव्स थ्रू डेंसर मीडियम देन इट बिकम्स फास्टर। लेकिन ऐसा होता था साउंड वेव्स में, ना कि लाइट वेव्स में। लेकिन इन्होंने क्या कहा है, इनकी थ्योरी को याद रखिएगा, इनके अकॉर्डिंग पार्टिकल एक्सेलरेट एज दे गो फ्रॉम एयर टू मीडियम ऑफ ग्रेटर ऑप्टिकल डेंसिटी एक्सप्लेन्ड बाय फोर्सेस एक्टिंग ऑन बाउंड्रीज बिटवीन डिफरेंट मीडिया। ठीक है, उन्होंने इस तरह से एक्सप्लेन किया। अब देखिए, वेव्स के बारे में हमें जो भी कुछ पता है वो अभी की नॉलेज है, बट प्रीवियस में इतनी नॉलेज थी नहीं। तो उन्होंने ये जो सेंसेशन ऑफ विजुअलाइजेशन है, कलर्स है, ये सभी अपनी कॉर्पस्कुलर थ्योरी से एक्सप्लेन कर दिया। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज आई एम जस्ट बिकॉज आई एम फॉरवर्डिंग दिस वीडियो बिकॉज it is not so much important. Now important statement is this much: when one examiner or any person asks you why does corpuscular theory was rejected, then you have to answer this statement only: this theory couldn't explain the observed phenomena such as interference, diffraction and polarization of light. all right, तो सबसे पहले अब देखिए, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन, दिस ऑल विल बी डिस्कस्ड एज अ सेपरेट टॉपिक और सेपरेट चैप्टर। तो मैं केवल तीनों के बारे में छोटे छोटे 2-2 लाइंस की स्टेटमेंट बोल रहा हूं, आप उसको दिमाग में रखिएगा। इंटरफेरेंस फिनोमेना ऐसा होता है कि अगर
दो बहुत ही छोटी छोटी स्लिट्स हैं, स्लिट यानी दो बहुत छोटे छोटे पिन होल हैं उनके पीछे, वो दीवार पे है, मान लीजिए दो छोटे छोटे पिन होल हैं, दीवार के एक तरफ आपने थोड़ा दूर पे लगभग 1-2 मीटर पे एक स्क्रीन लगा दी और दीवार में दो पिन होल्स हैं, और उसके बाद दूसरे तरफ से आपने एक कोई मोनोक्रोमेटिक टॉर्च यानी जो एक कलर की लाइट का टॉर्च हो जिसमें एक ही वेवलेंथ हो, उसको जब आपने जलाया तो आप ये पाएंगे कि दूसरे साइड पे पिन होल के दो चमकदार पॉइंट दिखने चाहिए थे, क्योंकि लाइट स्ट्रेट चलती है। तो पिन होल के दूसरे साइड में यानी जिधर स्क्रीन लगी हो उधर दो पॉइंट दिखने चाहिए थे, लेकिन होता क्या है कि ऑब्जर्व ये किया गया कि जो स्क्रीन थी यानी दीवार के एक तरफ से आपने टॉर्च जलाया, दूसरे साइड आपको पैटर्न दिखता है ब्राइट डार्क लाइट का। ठीक है, तो ये फेनोमेना यानी दो अलग अलग लाइट सोर्स का आपस में मिलके एक पैटर्न बनाना, दिस वाज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय कंसिडरिंग दैट लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, है ना, और अकॉर्डिंग टू पार्टिकल्स, जैसे पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चलते हैं उस तरह से काम नहीं बना। डिफ्रैक्शन भी एक तरह का फेनोमेना है। ठीक है, डिफ्रैक्शन इज एक्चुअली सिंपली वी कैन से द बेंडिंग ऑफ लाइट थ्रू एजेस। जैसे ब्लेड है, ब्लेड का जो एज होता है वो बहुत ही शार्प होता है, तो शार्प एजेस पे जब हम टॉर्च इल्यूमिनेट करते हैं, मोनोक्रोमेटिक टॉर्च इल्यूमिनेट करते हैं जिसमें एक ही लाइट हो, केवल लाल हो या केवल हरी हो, इस तरह की कोई, तो उसकी जो परछाई दूसरे साइड पड़ती है वो टॉर्च की एक बाउंड्री जहाँ पे है, वो जो ब्लेड पे जहाँ पे पड़ रही है जिस बाउंड्री पे टॉर्च, उस ब्लेड की परछाई केवल बननी चाहिए और ब्लेड के सामने ब्लैक होना चाहिए लेकिन नीचे कुछ नहीं। लेकिन पाया यह गया कि ब्लेड की परछाई के अलावा भी नीचे लाइट रहती है। ठीक है, यानी शार्प एजेस पे लाइट्स मुड़ जाती हैं, ये डिफ्रैक्शन है। इसी तरह पोलराइजेशन इज द फेनोमेना बाय विच एक्चुअली रेजिस्ट द मोशन ऑफ और द यू कैन से वाइब्रेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक वेक्टर्स। तो इलेक्ट्रिक वेक्टर को वाइब्रेशंस को कंट्रोल करना, जो हमने अभी पढ़ा ईएम वेव्स में, तो ये इस तरह के कुछ फेनोमेना थे। ये पोलराइजेशन के बारे में हम डिस्कस और भी करेंगे, लेकिन अभी के लिए कुछ नहीं करेंगे। तो ये कुछ फेनोमेनास थे जिसको ये वेव थ्योरी डिस्कस नहीं कर पाई। ठीक है, ये कॉर्पस्कुलर थ्योरी डिस्कस नहीं कर पाई और इसके लिए वेव थ्योरी में जाना पड़ा। तो वेव थ्योरी के जो सबसे पहले कह सकते हैं कि सबसे पहले जिन्होंने दी वो थे हाइगन्स ने वेव थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए अपने एक कुछ प्रिंसिपल दिए और वेव फ्रंट का कॉन्सेप्ट लाया। सो हाइगन्स जो थे उनके अकॉर्डिंग उनके पहले जो चलता था वो क्या था, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, है ना, और इससे फेनोमेना कौन कौन से प्रूव किए जा सके, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिस्पर्शन। बट व्हेन डज द लाइट रियली ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, it is actually rejected by the phenomena which is diffraction। ठीक है, तो इन सारी चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए, जैसे ये देखिए ये सामने आपको दिख रहा है कि इंटरफेरेंस या फिर कह लें कि डिफ्रैक्शन है ये। तो डिफ्रैक्शन कैसा है कि ये देखिए मान लीजिए कोई बीच में हमने क्या रखा है, ये एक सिक्का रखा हुआ है टॉर्च के बीच में, तो असल में कैसा बनना चाहिए कि बीच में डार्क हो जाना चाहिए, किनारे किनारे लाइट होना चाहिए, लेकिन देखिए परछाई रियल में कैसी नजर आती है इसकी, ऐसी शैडो बननी चाहिए थी। लेकिन हुआ क्या, यहां पे एक सेंटर पे सिक्के से कम साइज का थोड़ा सेंटर पे ब्राइट बना और उसके किनारे किनारे ब्राइट डार्क की रिंग्स बन गई। ठीक है, तो ये कैसे हुआ, व्हाई डज दिस हैपन, इट वाज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय लाइट ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। क्यों, क्योंकि ये ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो पाया प्रैक्टिकली, तो हमें थ्योरी को रिजेक्ट करने की जरूरत थी। एंड हियर कम्स द क्रिश्चियन हाइगन्स इन 1678, ही प्रपोज्ड हाइगन्स वेव थ्योरी ऑफ लाइट। ऑलराइट, तो ये देखिए ये आप रिपल्स तो इससे काफी परिचित होंगे। यहीं से उन्होंने कुछ आइडिया लिया कि जब हम एक किसी पॉन्ड में या लेक में पत्थर मारते हैं तो जो पत्थर होता है वो जिस पॉइंट पे गिरता है वहां से नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में वेव्स जनरेट होती हैं। इट इज एक्चुअली सम काइंड ऑफ मैकेनिकल वेव, बट वी कैन assume that somewhat same behavior is shown by the light wave also. These ripples which is producing from here, it is actually moving outward, and this outward motion is making some wave, and wave in the form of crest and trough.
अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो क्रेस्ट और ट्रफ बने, देखिए ट्रफ बनाया हुआ है ग्रीन से और क्रेस्ट बनाया हुआ है रेड से। किसी भी समय में ट्रफ का मतलब है कि सारे पार्टिकल्स का उस पोजीशन पे सबसे नीचे होना, क्रेस्ट का मतलब है सारे पार्टिकल्स का अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे टॉप पे होना। बट at the same time we can explain in scientific manner that the particles at the crest positions, ये जो रिंग वाली रेड पोजीशंस हैं, these particles are in same phase of wave, है ना, सेम फेज पे हैं कि अपने अपर कोर्स पे हैं कि लोअर कोर्स पे। उनका जो फाई है, ये जो हमने वेव थ्योरी जब 11th में पढ़ी थी, कुछ में वेव्स के बारे में जब पढ़ा था, तो वहां हमने पढ़ा था कि ये सारे पार्टिकल्स सेम फेज पे हैं। ऐसे पोजीशंस, ये इस तरीके जो ये क्रेस्ट और ट्रफ से जो, जैसे मान लीजिए ये रेड वाले एक अलग कर लें, दीज आर क्रेस्ट, इस पे जितने भी पार्टिकल्स होंगे दे आर इन सेम फेज। सो दिस लोकस इज कॉल्ड, this locus which is formed by the positions, connecting the positions of the particles having the same phase, is called wave front, because it will going to decide the further motion of the wave. All right, so how it looks, अब देखिए वेव फ्रंट इसी को कहा, ऑल पॉइंट्स ऑन दैट सर्किल विल ऑक्सिलेट विद सेम फेज। ऑल राइट, सो दिस इज व्हाट दीज आर वेव फ्रंट। अब देखिए इसको सेंटर से जब हम ज्वाइन करेंगे तो ये जो डिस्टेंस है ये बराबर आएगी, वाई इट इज इक्वल, बिकॉज द लाइट इज और द वेव इज ट्रेवलिंग in time t with same distance, so these are will in from same distance. A locus of all these points which oscillate in the same phase is called a wave front. So this is actually the wave front. अब अगला वाला भी wave front होगा ना, जब crest वाला होगा, फिर ये ट्रफ वाला होगा, फिर crest होगा। So speed of wave is decided by the distance traveled. All right, तो यहाँ पे देखिए अब इस वेव फ्रंट पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया है, उस टेंजेंट के जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी किसी भी पॉइंट पे, इस वेव फ्रंट के किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करने पे उस टेंजेंट के जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होती है, दैट डायरेक्शन इज कॉल्ड द रे, और वही डायरेक्शन क्या होती है, स्पीड ऑफ वेव की डायरेक्शन होती है। किसकी होती है, स्पीड ऑफ वेव की डायरेक्शन होती है। देखिए याद रखिएगा, अगर हम मैकेनिकल वेव की बात कर रहे हैं तो पार्टिकल अप डाउन ऑक्सिलेट कर रहे हैं इस पर्टिकुलर केस में, लेकिन वेव इज ट्रेवलिंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ऑलराइट, सो इट इज द डायरेक्शन ऑफ स्पीड ऑफ वेव। रे इज द डायरेक्शन अलोंग विच द एनर्जी ऑफ द वेव ट्रेवल्स। ऑब्वियस है, वेव का मतलब ही है कि एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। नाउ हाइगन्स प्रपोज्ड हिज थ्योरी इन लाइट ऑल्सो। तो उन्होंने कहा कि जैसे ये बल्ब एक पॉइंट सोर्स है, तो बल्ब से भी जो वेव्स निकल रही हैं वो कैसी हैं, इसी टाइप की हैं। जैसे मान लीजिए अगर एक बल्ब पॉइंट सोर्स है तो इस तरह की स्फेरिकल टाइप की वेव्स इससे निकल रही हैं, वो भी सेम रिपल्स ही हैं, बट यहाँ पार्टिकल्स रिपल नहीं कर रहे हैं, यहाँ एनर्जी रिपल कर रही है, यहाँ एनर्जी फॉरवर्ड मूव कर रही है, ठीक है, और वो मीडियम को फ्लक्चुएट करा रही है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, उन्होंने एक पॉइंट सोर्स को इसी तरह ज़ूम किया, इसी तरह सिलिंड्रिकल सोर्स है, मान लीजिए कोई इनकैंडेसेंट ट्यूब है, उसमें से कैसी वेव निकलेगी, ऐसे सिलिंड्रिकल टाइप की निकलेगी। सो दीज आर सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट्स, ठीक है, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट्स हैविंग सेम डिस्टेंसेस। देखिए ये वेव फ्रंट्स अलग अलग हैं और ये एनर्जी को कैरी ऑन कर रहे हैं आगे की तरफ। अब देखिए यहाँ पे क्या है, सन का एक एग्जाम्पल लेते हैं। सन से कैसा वेव फ्रंट हम एज्यूम करते हैं, सन से हम कैसा वेव फ्रंट एज्यूम कर सकते हैं। सन चूंकि गोल है, यूनिवर्स के कंपैरिजन में सन इज वेरी स्मॉल, सो सन विल प्रोड्यूस स्फेरिकल वेव फ्रंट, है ना, देखो spherical wave front, but earth is very very small, so when this spherical wave front reaches earth it becomes very planar, so sun is actually making a spherical wave front, but on the earth we are getting plane wave front from the sun. If we know the shape of a wave front at time t0 using Huygens principle, we can easily determine the shape and position of the wave front at a later time. So wave front is used to determine different type of characteristics of the wave in later time also. तो देखिए कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए एक पॉइंट सोर्स है, पॉइंट सोर्स इज जनरेटिंग वेव फ्रंट इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस. So consider this AB is a wave front
एट एनी लेटर टाइम टी। अब मान लीजिए देखिए ये ए और बी पे जितने भी पॉइंट्स होंगे ये सभी सेकेंडरी सोर्स का काम करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ तक तो वेव आ चुकी है, अब इसके आगे वेव बढ़ेगी तो यहाँ से शुरू होते हुए बढ़ेगी। तो हाइगन ने कहा कि हर वेव फ्रंट के जो पॉइंट्स होते हैं इट इज एक्चुअली द सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेव फ्रंट्स। ऑलराइट, सो हाउ डज इट प्रोड्यूस अ सेकेंडरी वेव फ्रंट? ऑब्वियसली पॉइंट है तो वो एक स्फेरिकल फॉर्म में आगे बढ़ेंगे। तो मान लीजिए उन्होंने किसी टाइम टी पे इतना दूर वेव फ्रंट चल पाए, सो दीज आर एक्चुअली इंडिविजुअल वेवलेट्स। इनको क्या नाम दिया उन्होंने? ये जो सेकेंडरी पॉइंट सोर्सेस हैं यहां से जो वेव्स निकली इनको क्या नाम दिया? वेवलेट्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए यही ऐसे देखा जाए तो एस से लाइट सोर्स निकल रही है, पर किसी पर्टिकुलर टाइम पे वेव फ्रंट ए बी था, तो अब आगे जो लाइट बढ़ेगी वो ए बी से आगे बढ़ेगी, तो ए और बी पे पड़ने वाले इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेवलेट्स निकलेंगी। और ये टी टाइम में मान लीजिए सभी बराबर दूरी, चूंकि स्पीड वी सेम स्पीड से बढ़ रही है, देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिस वेव फ्रंट विल बी सेम फॉर ईच पॉइंट। मान लीजिए वो v वेलोसिटी से सभी चल रही हैं और t टाइम बाद, यानी डिस्टेंस कितनी ट्रेवल होगी? रेडियस विल बी वेलोसिटी इनटू टाइम। ऑलराइट, सो r इज इक्वल्स टू vt। दिस इज द रेडियस ऑफ दिस वेव फ्रंट। और इस पे अब हम जब टेंजेंट ड्रॉ करते हैं सभी पे और उन सबको मिला दें, देन दैट प्रोड्यूस लोकस विल बी सेकेंडरी वेव फ्रंट, क्योंकि अब अगला जो वेव आगे बढ़ेगी उसके लिए पॉइंट सोर्स का काम इस ए डैश बी डैश पे लाई करने वाले पॉइंट्स करेंगे। यानी अब ए डैश बी डैश पे लाई पॉइंट जो होंगे वो आगे की वेव फ्रंट बनाएंगे। ऑलराइट, सो दिस ए डैश बी डैश इज कॉल्ड सेकेंडरी वेव फ्रंट। तो टाइम जीरो पे क्या रहा होगा? ए बी, और रेडियस क्या रही होगी? आर जीरो वेव फ्रंट की, है ना। इनिशियल पोजीशन कह सकते हैं। मान लीजिए अगर पीछे सोर्स हमको नहीं पता है, ए और बी को हमने यहीं से शुरुआत मानी, तो टाइम टी इक्वल्स टू टाउ पे कितना हो गया? मान लीजिए वी टाउ होगा ना डिस्टेंस ट्रेवल्ड। सो ये इसकी रेडियस हो गए और ये नया वेव फ्रंट येलो से शो कर दिया। इसी तरह अगर हम एक प्लेनर मान लीजिए एक लीनियर फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूटेड पार्टिकल्स को माने, तो इस पे जो पार्टिकल्स निकलेंगे ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन चूंकि देखिए पॉइंट सोर्स है तो पीछे भी तो होना चाहिए ना। यहाँ पे एक प्रॉब्लम है इस थ्योरी में। क्या? देखिए यहाँ पे जब हमारा ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में यहाँ से पार्टिकल्स से पॉइंट्स बने, देन इट इज ओके, बट देयर इज सम प्रॉब्लम। व्हाट? जब आगे पार्टिकल्स बढ़ रहे हैं तो पीछे भी तो वेव बढ़ रही है। देखिए एक किसी पॉइंट को ले लिया तो देखिए पॉइंट तो पॉइंट सोर्स है, उसके चारों तरफ वैसे ही स्फेरिकल डायरेक्शन में एनर्जी ट्रांसफर होगी या वेव ट्रांसफर होगी, लेकिन क्या पीछे भी वेव चलती है? आगे भी चल रही है, पीछे भी चल रही है? नहीं। तो इसके लिए हाइगन ने क्या एज्यूम किया कि वो अपनी बात को सच साबित करने के लिए उन्होंने कहा कि दिस wave which is generated from here has maximum amplitude in forward direction and zero amplitude in backward direction। हर सेकेंडरी वेवलेट से जो वेव निकलती है उसका जो बैकवर्ड डायरेक्शन की जो वेव होती है इट हैज जीरो एम्पलीट्यूड एंड फॉरवर्ड डायरेक्शन एम्पलीट्यूड हैज मैक्सिमम वैल्यू। ऑलराइट, ये तो उनकी बात थी जो हाइगन ने कहा। वॉइट और किरचॉफ ने कुछ सालों बाद इस चीज को मैथमेटिकली प्रूव किया। उन्होंने ये शो किया कि एम्पलीट्यूड ऑफ वेवलेट इन एनी डायरेक्शन, वेवलेट के एम्पलीट्यूड की वैल्यू किसी भी डायरेक्शन में जो मेकिंग एन एंगल थीटा विद द नॉर्मल टू द वेवलेट इज प्रोपोर्शनल टू 1 प्लस, देखिए क्या है, इज प्रोपोर्शनल टू 1/2 1 प्लस कॉस थीटा। देखिए यहाँ 1/2 1 प्लस कॉस थीटा स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। एम्पलीट्यूड ऑफ वेवलेट इन एनी डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल थीटा विद द नॉर्मल टू द वेवलेट इज प्रोपोर्शनल टू 1/2 1 प्लस कॉस थीटा। थीटा एंगल नॉर्मल टू द वेवलेट। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जो बैकवर्ड वेव है वो वेवलेट के नॉर्मल यही वाली लाइन है राइट साइड वाली, तो कितना एंगल बना ले रही है? 180 डिग्री बना ले रही है ना बैकवर्ड वाली वेव जो है ना। तो जब 180 डिग्री ऐसा हो जाएगा तो जितना ज्यादा एंगल रहेगा 180 डिग्री अपोजिट, तो 180 डिग्री में cos 180 इज इक्वल टू -1, सो द एम्पलीट्यूड बिकम्स 0। तो एम्पलीट्यूड बैकवर्ड वाली का कितना होता है? 0। ये किरचॉफ और वॉइट ने दिया था, इसके प्रूवमेंट की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है,
तो इसका मतलब इनको मैथमेटिकली ट्रू साबित किया जा सका। तो हमें ये पता चला कि वेव फ्रंट क्या होती है, वेव फ्रंट कितने कौन कौन से तरह की होती है, एंड व्हाई this wavefront is used, this wavefront phenomena, or you can say Huygens principle, is used to actually predict the later positions and later values of the waves and predict and say that and you can say prove the phenomena of the wave theory of light, that is interference, diffraction and polarization. We will going to study that how interference, diffraction, polarization, reflection will be explained by this theory. All right, so let's start this theoretically in our future videos. Thank you.